आई थिंक अब मुझे स्टार्ट करना चाहिए. Dear students, I think today I supposed to discuss the last topic of Unit 2, and that is the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. As far as the making of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Right, we all have already discussed it that during the process of the making of the covenant, due to the regular objection on the part of the communist bloc, finally the drafting committee of the Economic and Social Council decided to go for having the two different covenants, one dealing with the civil and political right that we have already discussed, and the another one, it was in the form of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Because the capitalist bloc headed by Russia was not ready to accept any covenant, any declaration without incorporating the rights relating to the economic, social and cultural right. Anyway, finally in 1966, the specialized agency of the United Nations organization and the drafting committee of that specialized agency finally decided to go to have two different covenants, as a result of which we are having the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights as well. As far as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Right is concerned, this covenant consists of 31 articles. I think I have already discussed it in the last class as well. And these 31 articles, which consisting together is said to be the International Covenant on Economic, Social and Cultural Right, can be divided into, or it is already being specified into 5 different parts, including an preamble. यानी कि this covenant is having a preamble as well as 31 articles. 31 articles can be divided into the 5 different parts. It is already being specified in the covenant itself. Part 1 is of general nature, and this part 1 of the covenant consists of only one article, and that is the Article 1. Part 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights consists of 4 articles from Article 2 to 25, and this part of the covenant actually deals with undertakes of the state. Undertakes of the state means that the state, while going to sign this declaration, must be aware about the fact that after signing this declaration, after rectifying this declaration, what the concerned state is supposed to immediately do. जैसे हमने सिविल एंड पॉलिटिकल कॉवेनेंट के केस में देखा कि वहां स्टेट के पास एक मैकेनिज्म दिया, स्टेट को एक मैकेनिज्म दिया गया था उसको कॉवेनेंट के राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, और वो मैकेनिज्म ये था दैट द कंसर्न स्टेट वाज सपोज टू prepare an exclusive report regarding the position of the human right in its own country. यानी हर मेंबर स्टेट को एक रिपोर्ट बनाना था after the lapse of the 1 year of the becoming the member of the International Covenant on civil and political right. तो उसी तरीके से यहाँ part 2 of the covenant which deals with the undertakes by the state or undertakes on the part of the state, इसमें 4 आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल 2 to 5 is related with undertakes, यानी स्टेट्स ने जो भी मेंबर स्टेट सिग्नेटरी बनते हैं
उनको ये पता होना चाहिए कि उनको आर्टिकल 2 से 5 के बीच में जो प्रोविजंस रखे गए हैं, जो कंडीशंस रखे गए हैं, जो अंडरटेक्स रखी गई हैं, उनको इमीडिएटली उन अंडरटेक्स को रीड आउट करना है, उनको पढ़ना है और उसके बाद ही फाइनली उनको साइन करना है। आप सभी जानते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो उसमें एक नोटिस होती है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बिफोर परचेजिंग दैट प्रोडक्ट यू मस्ट गो थ्रू दैट नोटिस, समथिंग लाइक दैट। द पार्ट 2 रिलेट्स विद अंडरटेक्स, यानी अगर कोई कंट्री इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट को साइन करना चाहती है तो उसको पार्ट 2 पे फोकस करना होगा, उसको ये देखना होगा कि उसको इमीडिएटली आफ्टर साइनिंग दिस कॉवेनेंट उसको क्या क्या करने होंगे और क्या क्या करने कंपल्सरीली करने होंगे, वो इस पार्ट 2 में स्पेसिफाइड है। हमारा जो कंसर्न ऑफ डिस्कशन है एंड दैट इज given under part 3rd of the international covenant on economic, social and cultural right, and the part 3rd is again like in case of civil and political right. Here again in case of the economic, social and cultural covenant, the part 3rd discuss the substantive rights of the citizens of this world. I'm saying citizens of this world because human right is having a इंटरनेशनल एम्बिट, हैविंग ए इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन। तो इसीलिए पार्ट 3rd हमें बेसिकली इन डिटेल डिस्कस करना है, क्योंकि पार्ट 3rd में उन राइट्स का इनकॉर्पोरेशन किया गया है जो कि इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट के रूप में एज ए ह्यूमन बीइंग इन द फॉर्म ऑफ द ह्यूमन राइट फाइनली इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, इंटरनेशनल बॉडीज ने एक्सेप्ट किया है। तो वी विल बी डिस्कसिंग पार्ट 3rd इन डिटेल। अगेन इन केस again like that of the civil and political covenant जो already कल हमने डिस्कस किया, here again part 4 of the declaration, part 4 of the covenant related to the implementing procedure, यानी जो implementation का procedure हम लोगों ने civil and political covenant के reference में डिस्कस किया। In the same way we will have to discuss the implementing procedure and directly or indirectly all the 4 procedures which we have already discussed is again available in case of the economic, social and cultural covenant. Then part 5 and the last part of this declaration is related to the rectification. एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो अभी तक मैंने आपके सामने शायद नहीं मैं रख पाया, चूंकि उसकी रेलेवेंसी अभी तक नहीं आई थी, लेकिन अब इस कॉवेनेंट के रेफरेंस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड द पॉइंट इज ऑफ रेक्टिफिकेशन। एक्चुअली चूंकि आप लोग लॉ से रिलेटेड, लॉ के स्टूडेंट्स नहीं हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो कि रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है। एक्चुअली लॉ मेकिंग प्रोसेस में rectification is a sort of mode of adopting or implementing the laws. जैसे फॉर एग्जाम्पल रेक्टिफिकेशन का मतलब ये है कि एक कानून बनेगा, ये आई एम जस्ट गिविंग यू फॉर द सेक ऑफ द रेफरेंस बिकॉज दिस covenant can be implemented and this covenant of economic, social and cultural right can be enforced only with reference to a country who has already rectified this declaration, this covenant. Rectified का मतलब ये है कि जैसे सपोज आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली अफगानिस्तान इज अगेन कंट्रोल्ड एंड कंक्वर्ड बाय द तालिबानीज। अब तालिबान के कंक्वेयर करने के बाद अफगानिस्तान में जो सरकार बनी है, उस सरकार को इंटरनेशनल लेवल पे एक गवर्नमेंट माने जाने के लिए रिकॉग्निशन, एक शब्द आता है इंटरनेशनल लॉ में, वो जरूरी है। आप सब देखते होंगे न्यूज में, टेलीविजन पे कि दुनिया के किसी भी कंट्री ने अफगानिस्तान हेडेड बाय तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। यानी बहुत सारी कंट्रीज हैं वो सोच रही हैं कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, लेकिन वो अभी वेट एंड वॉच कर रही हैं कि उनकी जो वर्किंग स्टाइल है क्या वो पहले जैसी वाली तालिबान जैसी है, या जैसा वो क्लेम कर रहे हैं कि अब हम अपने को बहुत रिफॉर्म करके दोबारा पावर में आए हैं, तो एक्चुअली वो रिफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है।
जब सारे कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो रिकॉग्निशन दी जाती है बाय ए ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट। उसी तरीके से एक मेथड है लॉ इम्प्लीमेंटेशन का कि डिक्लेरेशन बना या फॉरगेट अबाउट द डिक्लेरेशन, लेट अस have the example of the economic, social and cultural covenant of 1966 itself. इस covenant के implementation के लिए ये जरूरी है कि जो मेंबर स्टेट इसको साइन कर रहे हैं, यानी जो इस covenant के पार्टी बन रही है, जो भी कंट्री। साउंड बहुत कम आ रही है सर। साउंड कम आ रही है? हेलो जी सर। हाँ, अब कैसी साउंड आ रही है? सेम सही है साउंड सर, सही है, ठीक आवाज आ रहा है सर। हाँ, उनके अपने तो मेरा प्रॉब्लम है। तो मैं ये कह रहा था कि उसकी एक डिफरेंट पद्धति है कि अगर आप चाहें तो इस कानून को ऑप्ट करें, आप चाहें तो इसको ऑप्ट नहीं करें। हम लोग यहाँ इस अपने देश के सिटीजन हैं, हम किसी कानून को चाहें या नहीं चाहें, अगर पार्लियामेंट उस कानून को बनाती है तो उसका कंप्लायंस, उसका ओबीडियंस, उसका फॉलोइंग हमारे और आपके लिए कंपलसरी होता है। और अगर हम और आप उसको कंप्लाई नहीं करते हैं तो अकॉर्डिंगली हमको प्रोसिक्यूट किया जाता है। आप जानते हैं रिसेंटली देश में एक कानून बना है ट्रिपल डाइवोर्स के अगेंस्ट। अगर मुस्लिम मेल सोसाइटी से आप बात करेंगे तो 90% पीपुल विल नॉट बी हैप्पी विद दैट पार्टिकुलर लॉ, लेकिन उनके हैप्पी होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कानून जिस दिन पार्लियामेंट से पास हो गया, जिस दिन प्रेसिडेंट ने उसको अपनी एसेंट दे दी और फाइनली जिस दिन वो ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो गया, हम सभी के लिए मानना कंपलसरी है। और ये सरप्राइजिंग है, इतना इंपॉर्टेंट एक तरीके का एक प्रिजम्पशन भी है कि जिस दिन वो कानून ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो गया, गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, जंगल में रहने वाला, इस देश के किसी भी कोने में रहने वाला हो, वो ये भी नहीं कह सकता कि मुझे इस कानून के बारे में पता नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट जस्टिफाइड, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट में भी, यानी इग्नोरेंस ऑफ लॉ को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये आप नहीं कह सकते कि आप जहां से आए हैं वहां किसी को छेड़ देना, वहां किसी को मार देना या वहां किसी को काट के खा जाना ये ऑफेंस नहीं था, इसलिए मुझे यहां भी ये लिबर्टी मिलनी चाहिए। लेकिन दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लॉज हैं, ऐसे भी बहुत सारे कानून हैं जिसके इंप्लीमेंटेशन की जो जिम्मेदारी है वो उस लॉ मेकिंग बॉडी के अलावा उसके ऊपर भी है जिसके ऊपर फाइनली उसको लागू किया जाना है। इसका मतलब ये है कि रेक्टिफिकेशन जरूरी है। अगर मैं चाहूंगा कि मुझे इस कानून के दायरे में लाया जाए तो मैं इस बात का रेक्टिफिकेशन करूंगा, मैं इस बात को एक्सेप्ट करूंगा। और उस रेक्टिफिकेशन का रास्ता जो पार्ट 5 में इस कॉवेनेंट के रेफरेंस में बताया गया है, वो ये बताया गया कि जो भी कंट्री इस कॉवेनेंट को अडॉप्ट करना चाहती है उसके लिए अडॉप्ट करके उसको अपने लोगों को ये राइट्स अवेलेबल करवाना चाहती है जो पार्ट 3 में दिया गया है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो इस कॉवेनेंट को रेक्टिफाई करे, यानी उसको एक्सेप्ट करे। और एक्सेप्ट करने के बाद, उसको रेक्टिफाई करने के बाद फाइनली वो जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है उसको जमा करे। और उस रेक्टिफिकेशन के लेटर के जमा करने के 3 महीने के बाद फाइनली ये कॉवेनेंट उस कंट्री के लिए एग्जिस्टेंस में आएगा और उस कंट्री के लिए इस कॉवेनेंट में दिए गए प्रोविजंस को, इस कॉवेनेंट में दिए गए प्रिंसिपल्स को उसके लिए लागू करना उसके ऊपर ऑब्लिगेटरी और कंपल्सरी होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम दुनिया के नजर में ह्यूमन राइट प्रोटेक्टर के रूप में, ह्यूमन राइट चैंपियन के रूप में अगर अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इस कॉवेनेंट को एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करने के बाद इसका रेक्टिफिकेशन भी करें। रेक्टिफिकेशन होने के 3 महीने के बाद आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट यू आर डूइंग फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द राइट्स
given in this covenant, और उसी का incorporation part 4 में किया गया है, and part 4 is related to the implementing procedure. तो आज हमें बेसिकली, चूंकि implementing procedure जैसा कि मैंने कल कहा था कि implementing procedures are the same as we have discussed with reference to the civil and political right. Again you will have to specify, and again you will have to discuss the same implementing procedures with reference to the economic, social and cultural covenant. After concluding this class today itself, I will be sending you some written materials relating to the unit first and unit 2. उसमें भी आप लोग चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं. उसमें दिया हुआ है कि सेम जो मेथड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन है वो अगेन विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स इनकॉर्पोरेटेड है. तो इसमें मेन हमें डिस्कस करना था पार्ट 3 which talks about the different substantive rights of the peoples of the world. Part 3 prescribes part 3 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Covenant 1966. यानी इसके पार्ट 3 में जो सब्सटेंटिव राइट्स का इनकॉर्पोरेशन किया गया है, और पार्ट 3 कंसिस्ट ऑफ 10 डिफरेंट आर्टिकल्स. यानी पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 में 10 अलग अलग आर्टिकल्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 6 से इसकी शुरुआत होती है. आर्टिकल 6 इज रिलेटेड टू द राइट टू वर्क. ये बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है आज के डेट में भी, और पहले भी था. आजकल आपने देखा होगा कि राइट टू वर्क को लेके बहुत सारे दावे और बहुत सारी एजुटेशंस कंटिन्यूअसली चलती रहती है. बहरहाल इस कॉवेनेंट के आर्टिकल 6 में ये एक इनकॉर्पोरेशन किया गया है, और ये माना गया है कि इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट, and that right is in the form of right to work. It is the responsibility of the concerned state, whosoever becomes the member of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Right, कि वो अपने देश के सिटीजन्स को right to work सिक्योर करे. अब ये कई बार ह्यूमन राइट्स को पढ़ने के दौरान थोड़ा सा भी जो अप टू डेट लोग हैं, या आप सभी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, आप सभी रोज डेली देखते होंगे, क्योंकि आप सब पीजी के स्टूडेंट हैं, यू हैव ऑलरेडी पास्ड ग्रेजुएशन. कि हमारे देश में अगर हम कंपैरिजन करना शुरू करें तो हमें लगेगा कि हम तो ह्यूमन राइट के रिगार्डिंग कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी साइंड द डिक्लेरेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स. बट वेदर we have been in a position, and whether we have already implemented the economic, social and cultural rights within the territory of India or not, obviously the answer will be not. लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं आपके दिमाग में आना चाहिए, इसीलिए मुझे लगा कि मैं इसी स्टेज पे क्लैरिफाई कर दूं that none of the rights given in the covenant, given in the declaration or given in any of the international instrument cannot be compelled to be implemented compulsorily by ignoring all the otherwise facts and circumstances. We cannot claim, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज आर सो रिच. अब जैसे जो मुस्लिम लॉ जो गल्फ कंट्रीज में एग्जिस्ट कर रही है, उसकी कॉपिंग कोई अपने देश में करेगा इन द सेम वे, without considering the otherwise circumstances, otherwise economic considerations, तो उसका रिजल्ट बहुत डेंजरस होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जनरली कहा जाता है दैट ए मुस्लिम मेल कैन हैव मोर देन वन वाइफ. ये भी कहा जाता है दैट ए मुस्लिम इज हैविंग राइट टू डाइवोर्स हिज वाइफ एट हिज ओन विल. लेकिन क्या उस सिस्टम को हम जस्टिफाई कर पाएंगे जब जहां के सिस्टम का लोग कॉपिंग कर रहे हैं, वहां अगर कोई विडो हो जाए वीमेन, वहां अगर कोई डाइवोर्सी हो जाए,
a divorcee is getting support on the part of the government more than the regular working women in our country. You cannot say that if the male at that place is frequently giving the divorce, so even in our country we can do. This is not possible, because in our country, if you divorce the woman, who is going to take care of her? The in-laws will not accept her. उसके मदर फादर जब तक है तब तक शायद उसकी थोड़ी बहुत देखभाल हो जाएगी, but after the death of the parents, no brothers are going to accept the sister. ऐसी circumstance, and what the government will do, you all know that we all are graduates, we all are doing masters, we all are having the PhD degree, but what the government is doing for us, for what the government is giving to us. But in the other countries, if you are a graduate and if the government is not in a position to give you the employment, the government is giving a very huge amount in the form of the unemployment bhatta. तो इसीलिए यहाँ राइट टू वर्क की अगर बात की गई है, ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में तो किसी को राइट टू वर्क नहीं मिल रहा है, इसलिए हम ह्यूमन राइट के रिगार्डिंग इसका मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं। जिस कॉवेनेंट ने, जिस डिक्लेरेशन ने, जिस इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ने भी किसी कंट्री को कोई राइट इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी दी है, तो उसको ये भी लिबर्टी दी है कि वो इन्फोर्समेंट अकॉर्डिंग टू देयर ओन इकोनॉमिक वेल ऑफ their own consideration, with the consideration of their own cultural way of life, इन सभी चीजों को कंसिडर करते हुए एक कंट्री को कहा गया है कि आप अपने सिटीजन्स को, रेजिडेंट को और विजिटर्स को आप अपने जहां तक पॉसिबल हो पाए वहां राइट टू वर्क ऑफ द सिटीजन्स ऑफ योर ओन कंट्री आप उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, उसको राइट टू वर्क को वहां तक उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। दूसरा इसमें राइट है, एंड दैट इज राइट दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 7, and that is right to just and favorable conditions of the work. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है कि अगर कई सारे प्लेसेस पे ये देखा गया कि अगर किसी को राइट टू वर्क दिया गया तो वो राइट टू वर्क इन ए वेरी डेडली कंडीशन उसको दिया गया। यानी एक ऐसे सर्कमस्टांस में, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी practical reference, that when after getting my selection in Patna University in 2009, जब मैं पहली बार पटना लॉ कॉलेज आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी कॉलेज को ज्वाइन करने नहीं, किसी गोदाम को ज्वाइन करने आया हूं, क्योंकि इसकी कंडीशन ऐसी थी, किसी विंडो में कोई शीशा नहीं था, किसी बिल्डिंग के डिफरेंट पार्ट्स इतने डैमेज थे कि लगता था कभी भी ये गिर सकता है। तो मेरा राइट टू वर्क सिक्योर हो गया, बट राइट टू वर्क इन व्हाट कंडीशन? अगर सपोज ये प्रोविजन मिसिंग हो तो सरकार राइट टू वर्क के नाम पे आपको नरक में भी भेजेगी और कहेगी कि आई एम प्रोटेक्टिंग योर राइट टू वर्क। आप सरप्राइज होंगे कि कई बार जब हम लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया था, ऑल न्यू फेसेस 9-10 लोगों ने ज्वाइन किया, कई बार मेरे फ्रेंड्स जो क्लास ले रहे थे, क्लास में ही बहुत बड़ा बड़ा पार्ट जो है वो छत का वो अचानक गिरा, फॉर्चुनेटली किसी को डैमेज नहीं हुआ। तो इसमें इसीलिए आर्टिकल 7 इमीडिएटली आफ्टर राइट टू वर्क इनकॉर्पोरेट किया गया कि अगर यू आर giving the right to work, it should not be in a deadly condition, it should be in a lively condition, it should be in a healthy format। आप right to work दीजिए, but ये राइट इसलिए भी फ्रेंड्स इसमें जोड़ा गया है क्योंकि जो कैपिटलिस्ट लोगों के द्वारा जो लेबरर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता रहा था बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वार, और आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार जब रसिया उस लेबर कम्युनिटी का जब लीडर बना तो उसने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे बहुत सारे प्रोविजंस को, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करवाया। तो राइट टू वर्क सिक्योर होने के बाद इमीडिएटली ये कहा गया कि राइट to work must be just and favorable condition of the work। जो बेसिक चीजें रिक्वायर्ड है किसी वर्क को करने के लिए, उन बेसिक कंडीशंस को जरूर अवेलेबल करवाने की कोशिश की जाएगी। यहीं पे जो कंट्रीज की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग जो सर्विस कंडीशन में जो वेरिएशन आता है वो ऑन द बेसिस ऑफ द
ऑन द बेसिस ऑफ द बार्गेनिंग कैपेसिटी ऑफ द कंट्री वो वेरी करता है, लेकिन कम से कम जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द वर्किंग है उसका इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, उसकी एबिलिटी भी स्टेट की जिम्मेदारी है, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आफ्टर दिस द आर्टिकल 8 टॉक्स अबाउट राइट टू फॉर्म एंड ज्वाइन ट्रेड यूनियन। आप जानते हैं कि अगर किसी को राइट टू वर्क मिलता है, अगर उसके राइट टू वर्क में फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर वो एजिटेट करना चाहता है, अगर वो अपने ग्रीवांस को, अपने डिमांड को, अपने ग्रीवांसेज को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसको राइट टू फॉर्म एंड ज्वाइन ट्रेड यूनियन मिलना चाहिए। क्योंकि अगर उसको राइट टू फॉर्म एंड ज्वाइन ट्रेड यूनियन का राइट नहीं होगा, तो वो इंडिविजुअली इतने बड़े एम्प्लॉयर के साथ स्टैंड नहीं ले पाएगा, वो उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। फाइनली उसके ग्रीवांस के डिमांड के रिजल्ट में उसको शायद डिसमिसल लेटर मिलेगा। इसीलिए ये कहा गया कि जो भी राइट टू वर्क जिसको दिया जा रहा है, उसके कंडीशंस को भी सिक्योर करना जरूरी है, और साथ ही साथ उसको ये लिबर्टी मिलनी चाहिए कि वो ट्रेड यूनियन इमीडिएटली ज्वाइन कर सके, और ट्रेड यूनियन वो चाहे तो फॉर्म भी कर सके, और फाइनली ट्रेड यूनियन के माध्यम से जो लेबर क्लास है उसके वेलफेयर के लिए वो काम को आगे बढ़ा सके। After this, the next is the right to social security given under Article 9. Again, I am telling you that here the word social security never means social equality. Here the word social security means security from the economic point of view, यानी सोशल जो स्टेटस है किसी इंडिविजुअल का, वो इंडिविजुअल ड्यूरिंग द वर्क, आफ्टर द वर्क मोर और लेस सेम रहना चाहिए, या उसकी मिनिमम जो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है उसके अचीवमेंट का उसको राइट मिलना चाहिए, उसको इस बात का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो इसलिए आर्टिकल 9 टॉक्स अबाउट सोशल सिक्योरिटी। इन्हीं प्रोविजंस का रिजल्ट है दैट वी वेयर हैविंग द principle, or we were having the provision of the pension scheme, not only for the working man, even for the family, with the name of the family pension scheme. ये सारे schemes जो exist करते थे वो generally social security legislations के रूप में work करते थे। After Article 9, next is the Article 10, and Article 10 talks about right relating to motherhood and childhood, marriage and family। यानी इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ये जो टाइम टू टाइम आपको दिखता रहता है, यानी एवरी वीमेन इज हैविंग राइट टू बिकम ए मदर, उसके लिए उसको मैटरनिटी लीव दिया गया है, एंड लीव अप टू 6 months विद पेमेंट। फॉर द राइट्स रिलेटिंग टू चाइल्डहुड के प्रोटेक्शन के लिए आपने देखा कि जो वर्किंग वीमेन्स थी उनके बच्चों का जो चाइल्डहुड है वो बहुत अप्रोप्रिएट कंडीशन और एनवायरनमेंट में नहीं हो पाता था, जिसके लिए आजकल वर्किंग प्लेसेस पे प्ले स्कूल्स का कॉन्सेप्ट या बच्चों के केयर टेकिंग का कॉन्सेप्ट सरकार के कॉस्ट पे कई सारे स्टेट्स में, कई सारे प्लेसेस पे उसको सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है। राइट टू मैरिज विद द पार्टनर ऑफ योर ओन चॉइस का कॉन्सेप्ट जो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में भी जितने पर्सनल लॉज हैं, all the personal laws talks about the marriages between the same religious peoples, जिसके वजह से अगर कोई अदरवाइज रिलीजन में अगर मैरिज करना चाहता है तो he was not having the appropriate mechanism, जिस हार्डशिप को, जिस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फाइनली we have adopted the special marriage act। इसके अलावा जो आज के डेट में बहुत सारे अदरवाइज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस का कंप्लायंस करने के लिए भी जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ भी आज के डेट में एग्जिस्टेंस में आया, ताकि जो दो दूसरी जगहों के लोग भी अगर एक दूसरे के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन में आना चाहते हैं तो उनके राइट्स को, उनके ग्रीवांसेज को सेटल किया जा सके, उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। आफ्टर दिस नेक्स्ट इज द आर्टिकल 11, and Article 11 talks about right to adequate food, clothing, housing and a standard of living and freedom from hunger। आप सभी जानते हैं कि सरकारों को आजकल हम लोग कई सारे लोग जो एटलीस्ट जो एक
बिलो मिडिल क्लास पीपुल है, वो भी अक्सर इस बात को कहते हुए पाए जाते हैं कि सरकार लोगों को हरामखोर बना रही है, क्योंकि लोगों को अनाज फ्री में दे रही है, लोगों को घर बनाने के लिए पैसे फ्री में दे रही है। एक्चुअली सरकार फ्री में किसी को कुछ नहीं देती। सरकार जो भी देती है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से कैश करती है। और उस कैश करने का मतलब यह है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे सरकार को दुनिया को रिस्पॉन्ड करना होता है, तो सरकार ये जितने पैसे खर्च करती है, चाहे वो हाउसिंग के नाम पे खर्च करे, चाहे वो फूड ग्रेन सप्लाई के नाम पे खर्च करे, इन सभी खर्चों का डिटेल सरकार जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करती है और अपना पीठ थपथपाती है कि मैंने अपने देश के इतने भूखे लोगों को या इतने गरीब लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचाई हैं। और ये सुविधा पहुंचाना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन राइट का इनकॉर्पोरेशन है। तो इसीलिए आर्टिकल 11 का कंप्लायंस सरकार करती है, आपके ऊपर कोई उपकार नहीं करती। अगर सरकार ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया तो ऐसा नहीं है कि सरकार हमारे और आपके ह्यूमन राइट को लेके बहुत सजग थी, बल्कि सच्चाई ये है कि सरकार ने ये कमीशन इसलिए बनाया क्योंकि सरकार को इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पॉन्ड करना था। कंटिन्यूअसली दुनिया सरकार को क्रिटिसाइज कर रही थी फॉर डिस्प्यूट्स एट डिफरेंट प्लेसेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल इन नॉर्दर्न hill stations and state of Punjab and especially state of Jammu and Kashmir। उन सभी क्रिटिसिज्म्स को काउंटर करने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से 1993 में फाइनली इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये आर्टिकल 11 में एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि कोई भूख से नहीं मरना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर सरकार अपने इस जिम्मेदारी को नहीं पूरा कर पाती है तो वो ह्यूमन इंडेक्स की जो चार्ट बनती है, अकॉर्डिंगली उसमें उसका जो लेवल है वो अप एंड डाउन होता रहता है। और आप जानते हैं कि हम लोग उसमें काफी नीचे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग है वो काफी लो है। तो ये आर्टिकल 11 में एक्सप्रेसली प्रेस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट इज द राइट टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये आप रेगुलरली देख रहे हैं कि सरकार जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए या फिजिकल हेल्थ के लिए कितना एक्सपेंडिचर कर रही है। आपने देखा कि ड्यूरिंग कोरोना सरकार की जो प्रिपरेशन थी, जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को लेके, वो बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से सरकार लगातार क्रिटिसिज्म को फेस कर रही थी, लगातार सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। और वो इसलिए किया जा रहा था क्योंकि सरकार ने सिर्फ हमसे ही नहीं, पूरे दुनिया से ये कमिटमेंट किया है कि हम अपने देश के सिटीजन्स को, हम अपने देश के लोगों को जो मेडिकल फैसिलिटी है, चाहे वो मेंटल हेल्थ की बात हो या फिजिकल हेल्थ की बात हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम सक्षम हैं। उसके प्रोटेक्शन के लिए हम रेगुलरली वर्क कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो दिस इज ऑलरेडी incorporated under Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Right. Next is Article 13, and this Article 13 talks about right to education, including a plan for implementing compulsory primary education। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में Article 45 में already up to the age of 6 years फ्री एजुकेशन का प्रोविजन एग्जिस्ट करता था, जिसको आफ्टर amendment in the Constitution of India and by incorporating Article 21A of the Constitution of India, we have converted this right to education into a fundamental right, and this right goes up to the 14 years of age। यानी 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन मिले, ये उसका फंडामेंटल राइट है अब आज के डेट में, क्योंकि आर्टिकल 21A उसमें ऐड कर दिया गया है। हालांकि इवन 50 इयर्स बिफोर टू दिस इनकॉर्पोरेशन, सुप्रीम कोर्ट ने उन्नी जैन, मोहिनी जैन, उन्नी कृष्णन, ऐसे बहुत सारे केसेज में ऑलरेडी ये लेट डाउन कर दिया था कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है विद इन द एम्बिट ऑफ द आर्टिकल 21। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया था कि राइट टू लाइफ कैन नॉट बी
a good fundamental right without giving to the citizens the right to education. क्योंकि एक आदमी से अगर एजुकेशन को माइनस कर दिया जाए तो जनरली ये पाया जाएगा या ये पाया जाता है कि देयर इज हार्डली ए डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड द एनिमल। और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केसेस में ये कहा है कि राइट टू लाइफ नेवर मींस मियर एनिमल एग्जिस्टेंस, यानी एक जानवर को भी हम कितना प्यार से पाल के रखते हैं, लेकिन उस जानवर को बस इस बात की आजादी नहीं हम जनरली देते हैं कि वो जब चाहे वो वहां से हमारे घर से निकल जाए, जब चाहे जितने दिन बाद चाहे वो हमारे पास रिटर्न आ जाए, उसको हम जनरली बांध के रखते हैं। तो हम इंसानों को उस तरह के किसी भी बाउंडेशन में नहीं रख सकते, उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो उसका कंप्लायंस करे। तो ये आर्टिकल 13 में डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड है कि हर स्टेट को चाहिए कि वो मैक्सिमम कोशिश करे और अपने विदिन द स्टेट, अपने स्टेट में वो राइट टू एजुकेशन को फ्री करने की कोशिश करे, यानी लोगों तक फ्री एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश करे। और इसमें भी आर्टिकल 13 में एजुकेशन को अगेन कई सारे पार्ट्स में बांटा गया, जैसे प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, फंडामेंटल एजुकेशन, इस तरह के कैटेगराइजेशन जो आर्टिकल 13 में की गई। और ये कहा गया कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को एजुकेट करे, लोगों तक एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश करे। इसमें दो आर्टिकल और है, जैसे आर्टिकल 14 which talks about the responsibility of the state party towards this covenant. I am reading the article 14. Each state party to the present covenant, which at the time of becoming a party has not been able to secure in its metropolitan territory or other territories under its jurisdiction compulsory primary education free of charge undertakes within 2 years to work out and adopt a detailed plan of action for the progressive implementation within a reasonable number of years to be fixed in the plan. Friends, we are fortunate enough that this type of provision was already there even in the directive principles of the state policy of the Constitution of India. लेकिन ये उन कंट्रीज के लिए है जिन कंट्रीज में इस कॉवेनेंट के साइन करने के समय तक अगर प्राइमरी फ्री एजुकेशन का प्रोविजन उनके कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता था तो उसको इमीडिएटली लागू करने की बात आर्टिकल 14 में की गई है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन को यह माना जाता है कि ये एक पैरामीटर है, आदमी को आदमी बनाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए इस तरह की इंपॉर्टेंस देने की बात इस आर्टिकल 14 में की गई है। देन लास्ट इज the Article 15, which talks about the state party to the present covenant recognize the right of everyone first to take part in cultural life. I mean to say that Article 15 is the one direct provision talking of the cultural rights of the citizens of a country. यानी हम सभी को ये अधिकार है कि हम अपने कल्चरल वे ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें, हम अपने कल्चरल लाइफ को जी सकें, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि हमारा जो जिस कल्चरल लाइफ की बात हो रही है वो हमारे जिस कल्चरल लाइफ की बात हो रही है दैट कल्चरल लाइफ शुड नॉट वायलेट द प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, द प्रोविजंस ऑफ द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट एज वेल एज द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। यानी ऑन द नेम ऑफ द कल्चरल प्रोटेक्शन एंड ऑन द नेम ऑफ द कल्चरल हेरिटेज यू विल नॉट बी अलाउड टू डू समथिंग which is against the public policy of the state। तो उसी तरीके से इसमें आर्टिकल 15 को डिफरेंट पार्ट्स में इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में कहा गया द स्टेट पार्टीज टू द प्रेजेंट कॉवेनेंट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ एवरीवन फर्स्ट टू टेक पार्ट इन कल्चरल लाइफ, सेकंड to enjoy the benefits of scientific progress and its applications, third to benefit from the protection of the moral and material interest
resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he is the author. Second point, incorporated under Article 15, talks about the steps to be taken by the state parties to the present covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for the conversation, the development, and the diffusion of science and culture. This is all about the different rights incorporated under the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right. Friends, by discussing this, I have completed the unit 2 of your syllabus. One more unit I am supposed to discuss, and that is the last unit. I think the third unit will be taught by some other teacher of the psychology department, and unit 4 I will be discussing. But I will be starting the discuss. I will be starting discussion on unit 4 from Monday onwards. I think I will take 3 to 4 classes, and I will be trying my best to complete by Wednesday or Thursday in next week the unit 4th as well. And today by evening I will be sending you the hard material, text material relating to unit 1 and 2. ओके, थैंक यू सर। इस 2 यूनिट का मटेरियल कुछ बुक से मटेरियल है मेरे पास जो अक्सर हम लोग यूज करते हैं, दैट आई विल बी शेयरिंग यू बाय द इवनिंग। वो आप तक पहुंच जाएगा इसी ग्रुप के माध्यम से। तो इन दोनों यूनिट्स में अगर कोई क्वेरी है तो उसको भी आप लोग रेडी रखिए। मंडे से जब हम लोग 4th यूनिट शुरू करेंगे तो हम लोग उसको उसमें टेकअप करते जाएंगे। कोई क्वेरी होगा तो उसको डिस्कस करेंगे हम। सर जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है वो लोग क्या करेंगे? कौन ऐड नहीं है? सर हम लोग एमजेएमसी डिपार्टमेंट से हैं, हम लोग ग्रुप में ऐड नहीं है। तो ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप क्लास कैसे अटेंड कर रही हैं? ये सर गूगल मीट नहीं, कोई स्पेशली ग्रुप बना हुआ है ना ह्यूमन राइट्स का। अच्छा, तो ऐसे लोग भी हैं जो वो 2 ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ऐसे लोग भी हैं जो उसमें नहीं हैं। यस सर। चलो फिर तो आईटी सेल अपना देखेंगे। तो सर हम लोग को मटेरियल कैसे प्रोवाइड होगा? लोग पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे इस मटेरियल को अपलोड कर देंगे, आप लोग वहां से ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू।